Hello students and welcome to my class. Today we shall do chapter 11 tenses. Now students, what do you understand by tenses? The tense is the form of a verb that indicates the time of an action. So according to this sentence, what do we understand? Form of a verb. Verb क्या होता है? क्रिया होता है या कोई एक्शन वर्ड होता है जिससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है what it is doing. So, tense is the form of a verb that indicates कौन से टाइम पे वो एक्शन हुआ है. Indicates the time of an action. तो टेंस जानने के लिए हमें पहले तो वर्ब जानना होगा एंड कौन से टाइम पे हुआ है. ठीक है, these two things are very important. And if there is a verb, there has to be a subject in the sentence. So based on this, we will start your chapter tenses. Now, tense is the form of a verb that indicates the time of an action which is denoted by that particular verb. It also shows the degree of completeness of the action. मतलब किस हद तक वो एक्शन कंप्लीट हुआ है या चल रहा है या होने वाला है. So now just observe these pictures. In the first picture, a baby is seen. Second picture, we can see a boy. And in the third picture, we can see a man. So past में ये बच्चा बड़ा होके present में ये हुआ एक लड़का, लड़के से few years later वो एक आदमी बनेगा. So past, present and future. Past मतलब पहले, a few years ago. Present मतलब now, वर्तमान काल. Future मतलब a few years later या फिर भविष्य काल जो आप समझते हैं. So past, present and future. Based on these time zones or slots, we will study our tenses. Now, read these examples. I studied in class 5 last year. So what tense do you think this will be? यहाँ पर I है subject, studied है आपका verb. कब स्टडी किया? क्लास 5 में लास्ट ईयर. अब लास्ट ईयर मतलब वो पास्ट में है. सो दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस. नाउ सेकेंड एग्जांपल देखेंगे. आई स्टडी इन क्लास 6 नाउ. अब जहां पर भी वर्ड नाउ आता है मतलब वर्तमान काल में मैं अभी प्रेजेंटली आई एम स्टडिंग इन क्लास 6. सो दिस इज योर प्रेजेंट टेंस. नंबर 3, I shall study in class 7 next year. जहां पर भी ये वर्ड नेक्स्ट आता है मतलब अभी तक हुआ नहीं है, वो होने वाला है. सो इन द सेकेंड एग्जाम्पल, आई स्टडी इन क्लास 6 नाउ प्रेजेंट. तो नेक्स्ट ईयर में कौन सी क्लास में जाऊंगा या जाऊंगी? क्लास 7 में. सो ये सेंटेंस आपका आता है future tense में. So based on this students, we can know that tenses are divided into three tenses. Present tense, past tense and future tense. इन तीनों टेंसेस को हम उनके डिफरेंट काइंड्स को इन डिटेल पढ़ेंगे. इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के ऊपर ध्यान देंगे. डिटेल में पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस क्या है, उसके कितने फॉर्म्स हैं. नाउ प्रेजेंट टेंस, अ वर्ब दैट इंडिकेट्स present time is said to be in the present tense. आपका ये जो tenses वाला चैप्टर है बच्चों, it solely depends on your verb. सेंटेंस में जो वर्ब है वो कौन सा टाइम इंडिकेट करता है उस बेसिस पे हम अपने टेंसेस को डिवाइड करते हैं. सो अ वर्ब दैट इंडिकेट्स प्रेजेंट टाइम और द टाइम राइट नाउ इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस. इट इज यूज्ड to tell us about the actions that take place at the time of talking. That means now I am talking to you. That means we are at the present time. So जो भी actions हो रहा है, अभी क्या कौन सा action हो रहा है? I am talking to you. So I am talking to you in the present tense. That is at present. So the present tense has 4 forms. We will study all the forms in detail. It is very easy students. You don't have to get tense with what is S, what is V1, what is O. Okay, I'll explain everything in detail. Just concentrate and follow. First form is present indefinite tense, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से जानते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? यू विल जस्ट ओनली हैव अ सब्जेक्ट, यू विल हैव एन ऑब्जेक्ट and both the subject and the object will be joined by your root form या base form of your verb जिसे हम V1 बोलते हैं.
V1 फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज द बेस फॉर्म, जिसमें कोई भी पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल नहीं लगता है, उसे हम बोलते हैं V1 या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, विथ लॉट ऑफ एग्जांपल्स यू विल अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट इट इज। नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे हम कहते हैं, उसका फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम कहां पर अप्लाई करेंगे? वी विल अप्लाई इट इन योर sentences. Now, present indefinite tense is used to indicate a fact that is habitual or happens repeatedly or often. Habitual मतलब जो हमारे हैबिट के अनुसार हम रोज करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, या हमेशा मतलब एक डेली एक रूटीन के तौर पे करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मनु गोज टू द जिम डेली। अब एक सेंटेंस हैज बीन गिवन टू यू, मनु goes to the gym daily। यहाँ पे स्टूडेंट्स व्हाट डू यू हैव टू आइडेंटिफाई? सब्जेक्ट कौन है? हमारा सब्जेक्ट है मनु, कहाँ जाता है? ऑब्जेक्ट जिम, वर्ब क्या है? goes, कितने बार जाता है? डेली जाता है। सो ये हैबिचुअल फैक्ट है, ये रिपीटेड फैक्ट है, ठीक है, वो डेली रोजाना जाता है। सो मनु सब्जेक्ट, goes वर्ब, जिम ऑब्जेक्ट एंड डेली। डेली मतलब रोजाना। I drink lemon tea in the evening। यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई व्हाट इज अ सब्जेक्ट। I सब्जेक्ट प्रोनाउन, ड्रिंक इज एन एक्शन वर्ड मतलब आपका वर्ब हुआ, क्या पीती हूँ मैं? लेमन टी पी। एंड इन द इवनिंग मतलब रोज शाम को मैं लेमन टी पीती हूँ। सो आई ड्रिंक लेमन टी इन द इवनिंग। आई सब्जेक्ट आपको मिल गया, ड्रिंक वर्ब है और लेमन टी आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये दो एग्जांपल्स आपको इस फॉर्मूला के तौर पे समझ आ गया। सब्जेक्ट रहेगा पहले जो कि फर्स्ट सेंटेंस में मनु है, उसके बाद रहेगा आपका वर्ब V1 जो कि आपका बेस फॉर्म में है गोज, एंड फिर आपका रहेगा ऑब्जेक्ट जो कि है जिम। वैसे ही सेकेंड सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला S प्लस V1 प्लस O आपका सब्जेक्ट रहेगा I, वर्ब V1 रहेगा ड्रिंक एंड ऑब्जेक्ट रहेगा लेमन टी। इस हिसाब से यू कैन अप्रोच दिस प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, ये तो हमने पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है एक फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट या जो रिपीटेडली और ऑफन होता है उसको इंडिकेट करता है। सेकेंड, इट ऑल्सो रिफर्स टू अ यूनिवर्सल ट्रूथ और अ साइंटिफिक फैक्ट। अब ये सब चीजें क्या है? जैसे कि अर्थ, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये तो है हमारा साइंटिफिक फैक्ट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, plants need sunlight, air and water for photosynthesis, ये एक scientific fact है। So these kind of sentences will also be referred to by your simple present tense। अब इसमें the earth moves around the sun में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S plus V1 plus O। अर्थ आपका सब्जेक्ट हुआ, मूव्स आपका वर्ब हुआ, अराउंड विच ऑब्जेक्ट? अराउंड द सन। तो मिल गया आपको S प्लस V प्लस O। ठीक है, नेक्स्ट, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, एंड गैसेस जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया फॉर्मूला बेस्ड पे। ठीक है, similarly you can do the third sentence। Now it is also used to refer the natural qualities and professional activities। professional activities क्या है? जो हम एक प्रोफेशन के तौर पे करते हैं उन्हें हम प्रोफेशनल एक्टिविटीज कहते हैं। सो नेचुरल क्वालिटीज क्या है? जो हमारा इनबॉर्न बेसिक नेचर है या क्वालिटी है वो हमारा नेचुरल क्वालिटी कहलाता है। जैसे चिल्ड्रन आर इनोसेंट, दे लव एवरीबडी। अब यहाँ पे दो वर्ब्स है, आर भी है एंड लव भी है। ठीक है, सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल है जहां पे इट रेफर्स टू नेचुरल क्वालिटीज एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज का एग्जांपल है ये वाला। एंड आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीज फॉसिल्स रेलिक्स ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो आर्कियोलॉजी पढ़ता है, तो दैट इज अ प्रोफेशनल प्रोफेशन बाय इटसेल्फ। सो ये ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए भी हम रिफर करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, so next we will go over to, it is also used in proverbs। proverbs क्या होता है? जैसे आपके कुछ मुहावरे होते हैं वैसे proverbs होते हैं इंग्लिश में। एग्जाम्पल, haste makes waste। haste का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? haste means always hurrying and not doing things in a slow and
systematic way. Making haste means rushing up to finish your work. Now, haste makes waste. अब ये proverb में haste जो है makes waste, ये जो makes आएगा यहाँ पे ये आपका indicate करेगा कि ये है आपका simple present tense. Next proverb, a stitch in time saves nine. What does this mean? If you do your work or if you act at the right moment in the proper manner, it will save nine. मतलब जो चीज आप एक बार में अच्छे से सोच समझ कर सकते हैं, अगर आपने किया तो आपको बाद में पछतावा नहीं होगा एंड और भी काम उस पर नहीं करना पड़ेगा. सो दिस मीन्स अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. ठीक टाइम पे ठीक डिसीजन लेना मीन्स अ स्टिच इन टाइम. Okay, now next, fortune favors the bold. Fortune favors the bold मतलब bold मतलब क्या, जो लोग अच्छे से अपना काम करते हैं एंड स्ट्रांग होते हैं अपना काम करने में, उनको हमेशा फॉर्च्यून या डेस्टिनी फेवर करता है. ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ प्रोवर्ब्स आल्सो, हियर यू हैव योर वर्ब्स लाइक मेक्स, सेव्स एंड फेवर्स. ओके, नाउ दिस वी रेड अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहां पे आपका फॉर्मूला था subject plus V1 या root form of the verb plus object. Now, second form is present continuous tense. जो आपका फॉर्मूला बनता है इसमें स्टूडेंट्स, इट इज S subject plus either is या am या are depending upon the subject plus V1 form of the verb, जिसमें जुड़ेगा आपका ing. क्यों? क्योंकि continuous tense में always remember there will be an ing with the verb. This you please keep in mind. This is very important. Wherever you find the word continuous tense, verb will always end with ing unless it is an helping verb plus object. ठीक है. तो यहाँ पे present continuous tense का formula. See students, you don't have to memorize all this. Present continuous tense. Present continuous tense में एक subject होना चाहिए beginning में और last में एक object होना चाहिए. अब बीच में होना चाहिए आपका verb. अब verb से पहले क्या होगा वो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में याद रखिए कि इज, एम या आर होगा और V1 फॉर्म में ing जुड़ेगा. बस दैट्स इट. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ एट प्रेजेंट और एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. अभी हम जब बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हो तो क्या एक्शंस हो रहे हैं, वही आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब करेगा. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अमित इज प्लेइंग हैंडबॉल. अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट. हमेशा बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में देखिए आपका सब्जेक्ट होगा, हमेशा एंड ऑफ द सेंटेंस में आपका होगा ऑब्जेक्ट. अमित इज प्लेइंग हैंडबॉल. इज प्लेइंग, इज आपका वर्ब फॉर्म जिसमें आपका लगा प्ले. प्ले इज योर वर्ब जिसमें लगा ing. ठीक है. तो वो हो गया प्लेइंग. ये यहाँ पे देखिए V1 प्लस ing, V1 इज प्ले प्लस ing जुड़ा तो हो गया प्लेइंग. अमित इज प्लेइंग. क्यों? बिकॉज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज इज. ओके. नाउ आई एम वॉचिंग अ मूवी. आई है सब्जेक्ट प्रोनाउन जिसमें आपका जुड़ेगा एम. ऑलवेज रिमेंबर विद सब्जेक्ट प्रोनाउन आई वी यूज एम. ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. वॉच इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें जुड़ेगा ing तो हो जाएगा वॉचिंग अ मूवी. मूवी इज योर ऑब्जेक्ट. ठीक है. नाउ इट इज ऑल्सो यूज टू रिफर टू अ फ्यूचर प्लान. प्लान जो फ्यूचर में हम बनाते हैं उसको रेफर करने के लिए भी हम ये टेंस यूज करते हैं. कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एग्जाम्पल है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द मीटिंग. दे हमारा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल है इसलिए हम यूज करेंगे आर. अगर हमारा सिंगुलर होता तो हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? इज. अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन आई होता सब्जेक्ट की जगह में तो यूज करेंगे एम. सो यहाँ पर क्योंकि दे मोर देन वन पर्सन प्लूरल है तो वी विल यूज आर. दे आर प्रिपेयर इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड जिसमें हम जोड़ेंगे ing तो बन जाएगा प्रिपेयरिंग फॉर द मीटिंग. मीटिंग आपका है ऑब्जेक्ट. किस लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? फॉर द मीटिंग. नाउ वी आर प्लानिंग टू बाय एन अपार्टमेंट. वी इज योर सब्जेक्ट. ये एक से ज्यादा है तो प्लूरल सब्जेक्ट है. प्लूरल सब्जेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? आर. प्लान आपका जो है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसमें ing जुड़ेगा तो प्लानिंग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट
प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में है प्लस द ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका है अपार्टमेंट सो वी आर प्लानिंग टू बाय एन अपार्टमेंट वी सब्जेक्ट इज एम आर के जगह में आर आया प्लान प्लस आईएनजी प्लानिंग हुआ एंड ऑब्जेक्ट सो ऑलवेज आप जो भी सेंटेंस आएगा पहले आप देख लीजिए उसमें आईएनजी है तो वो कंटिन्यूअस टेंस है ठीक है और फिर उसका आप फॉर्मूला डाल के आप उसको ब्रेक डाउन करके आराम से कर सकते हैं जो कि हम आगे वर्कशीट्स में करेंगे अब थर्ड फॉर्म क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने अभी तक दो पढ़े हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहां पर भी आता है स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट that sentence will have has या have and will be added with the third form of the verb ठीक है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब उसमें ed जुड़ता है with the base form of the verb excuse me students now all these sentences will have a subject and the object बीच में क्या होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिगनिंग एंड एंड में हुए बट बीच में क्या आ गया इज एम या आर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिगनिंग एंड एंड में आ गए बीच में आया आइदर हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब that is the only difference now what is it used to indicate it is used to indicate an action that has been completed at the time of speaking ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे दे हैव प्लक्ड ऑल द फ्लावर्स फ्रॉम माय गार्डन अभी आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम टेलिंग यू दैट दे हैव प्लक्ड ऑल द फ्लावर्स फ्रॉम माय गार्डन अब व्हाट इज योर फॉर्मूला से फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहां पे भी आपके सेंटेंस में हैव या हैज आ गया आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब दे आपका सब्जेक्ट है हैव आपका जो यूज होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लस उसमें जुड़ेगा प्लक जो आपका V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो बन जाएगा V3 फॉर्म में प्लक्ड ed जुड़ जाता है तो वो V3 फॉर्म में आ जाता है ठीक है ऑल द फ्लावर्स फ्रॉम माय गार्डन ऑब्जेक्ट क्या है फ्लावर्स है ठीक है सेकंड आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क आई एम द सब्जेक्ट हैव जस्ट फिनिश्ड जो है फिनिश का V3 फॉर्म है क्या फिनिश किया माय वर्क व्हिच इज द ऑब्जेक्ट नाउ it also indicates an action that began in the past and continues up to the present एक एक्शन जो पास्ट में बिगिन हुआ एंड प्रेजेंट तक अभी तक चल रहा है उसको भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडिकेट करता है एग्जाम्पल आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस कॉम्पिटिशन थरोली अभी जो कंपटीशन के लिए मैं आई हूँ मैंने उसका प्रिपरेशन पास्ट में ही शुरू कर दिया है और अभी तक वो चल रहा है आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस कॉम्पिटिशन आई सब्जेक्ट हैज या हैव की जगह पे आपका हैव आया प्रिपेयर जो आपका V1 फॉर्म है उसमें ed लगा दो V3 फॉर्म हो गया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कॉम्पिटिशन आपका ऑब्जेक्ट ओके शी हैज लर्न कथक शी सेकेंड पर्सन सिंगुलर के लिए हम हैज लगाते ओके एंड हैव कहाँ लगाते फर्स्ट पर्सन सिंगुलर शी हैज लर्नड कथक शी सब्जेक्ट कथक ऑब्जेक्ट बीच में हमारा क्या आएगा हैज या हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब अब हैज लगा क्योंकि शी है और लर्न जो कि V1 फॉर्म है उसका V3 फॉर्म है लर्नड ओके सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई दीज सेंटेंसेस और टेंसेस नाउ नंबर 4 जो है आपका हमने इससे पहले क्या किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इट इज द सेम थिंग बट कंटिन्यूअस मतलब V1 फॉर्म के साथ आपका जुड़ेगा ing कंटिन्यूअस है whenever there is continuous you will have first form of the verb plus ing so present perfect continuous tense मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब इट शुड हैव हैज या हैव सो सब्जेक्ट के बाद आपका हैज या हैव प्लस बीन आएगा दिस इज द आइडेंटिफाइंग थिंग फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस द ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर कितना टाइम तक हुआ है ओके नाउ वी विल डू इट विद अ फ्यू एग्जांपल्स
टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड टू रिफर टू एन एक्शन in continuation for a period of time indicated by for। अगर period of time है तो it is indicated by for, और from a point of time मतलब किस time से, then it is indicated by since in the past and which is still going on at the time of speaking। अगर period of time है, जैसे period of time मतलब January to February, that is a period of time, it is indicated by for, or from a point of time it is indicated by since morning, since last night। ठीक है, यहाँ पे हमारा पीरियड ऑफ टाइम नहीं है बट इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सिंस। फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ओके, नाउ वी विल सी एन एग्जांपल। आई हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल सिंस 2010। फर्स्ट, राइट डाउन योर फॉर्मूला। ओके, सब्जेक्ट आई, हैज या हैव, क्योंकि आई जो है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच विल बी फॉलोड बाय हैव। हैव के बाद आपको क्या लगाना है? बीन। आई हैव बीन तक हो गया। अब स्टडिंग, बिकॉज इट इज कंटिन्यूस, स्टडिंग, इसका बेस फॉर्म क्या है स्टडिंग का? स्टडी। तो उसमें अगर हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो इट बिकम स्टडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है। उसके बाद फॉर्मूला क्या बोलता है? आइदर सिंस या फॉर लगाइए टाइम को इंडिकेट करने के लिए। सिंस 2010 मीन्स दिस इज इंडिकेटिंग योर पॉइंट ऑफ टाइम, कब से आप पढ़ रहे हो स्कूल में। आई हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल सिंस 2010। सो एनी सेंटेंस विच विल हैव या हैज या बीन एंड आईएनजी वाला फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सिंस या फॉर होगा उस सेंटेंस में, then you can identify that it is a present perfect continuous tense. What are the main things which it should have? It should have has, yeah, have. It should have been. It should have the ing form of the base form of the verb, and it should have and since, yeah, for indication of time. Subject and object तो होता ही है हर sentence. Okay. For example, we will see one more. She has been chopping vegetables for 2 hours. She second person singular में हमेशा has लगता है। अब been chopping, chop का हो गया हमारा chopping। chop जो है आपका V1 फॉर्म है, उसमें ing लगाएंगे तो chopping to indicate present continuous tense. What is the object? Vegetables for 2 hours मतलब कितना period of time के लिए वो chop कर रही है? For 2 hours. Okay, now it is important to remember that words like never, seldom, always, often, sometimes, usually, generally, daily, on Sundays, etc. are all used in the simple present tense. Example, अगर आपके sentence में ये सब words आए तो आप उसको present tense के तौर पे, simple present tense के तौर पे ले सकते हैं। Like for example, I never tell a lie. I am the subject. Never tell मतलब आपका tell हो गया verb, और उससे पहले अगर आपको ये सारे words में से कोई भी आया तो ये इंडिकेट करता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। She often visits the church near my house. She हो गया सब्जेक्ट, चर्च हो गया ऑब्जेक्ट। अब often वर्ड आ गया, visits तो आपका verb है ही, so often visits, often जो वर्ड है वो भी आपका यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। Now, one more important thing is we use the first form of the verb with plural subject. ठीक है? Now, plural subject का example क्या है? They. ठीक है? एक से ज्यादा they. Now, we will use V1 form of the verb. They brush. I am telling you that जो plural subject है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि दे ब्रश देयर टीथ। ठीक है, दे जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है एंड दे ब्रश देयर टीथ। ब्रश जो है आपका वर्ब है, लेकिन जहां पर भी प्लूरल सब्जेक्ट से इट विल बी फॉलोड बाय योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज ब्रश। ठीक है, वी एड एस और ईएस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, नाउ सिंगुलर सब्जेक्ट जो है एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, ही washes clothes. He singular subject. अब जहां पर भी ये रूल है, you have to remember this. He washes. Wash जो है आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसमें हम जोड़ेंगे es। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। जहां पर भी सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां पर आप वर्ब के साथ es या s ऐड करेंगे।
ठीक है, ही वॉशेस क्लोथ्स। अब वी वॉश क्लोथ्स, वी जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट में व्हाट इज द रूल से वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली, उसमें कोई एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, हम वर्ब को वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह ही लिखेंगे। वी वॉश क्लोथ्स बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट एंड देयरफॉर वॉश फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। he washes clothes singular subject, so we add s or es to the फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, वी एड डू या डज नॉट बिफोर द मेन वर्ब टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या है, जिसका मतलब होता है कि वो पॉजिटिव सेंस में नहीं है। लाइक सी, दे डू नॉट वॉच कुकरी शोज, दे वॉच कुकरी शोज पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कुछ हो रहा है। दे डू नॉट वॉच कुकरी शोज मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये देखते नहीं है, ये कुकरी शोज नहीं देखते हैं। शी डज नॉट वॉच क्रिकेट मैचेस, इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा, शी वॉचेस क्रिकेट मैचेस। शी डज नॉट वॉच क्रिकेट मैचेस नेगेटिव हो गया, वो क्रिकेट मैच नहीं देखती है। जहां पर भी डज नॉट डू नॉट आता है, इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। सो we also place do or does in the beginning of a sentence to form interrogative sentences. What is the meaning of interrogative? Interrogative means to interrogate. Interrogative जो आपका word आया है वो आया है word interrogate से. Interrogate means to ask, to question. So questioning words are, we place the word do या does in the beginning of the sentence. ठीक है, ये जो आपका वर्ब है इस सेंटेंस में, डू यू एग्री विथ मी, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया आपका, क्वेश्चनिंग सेंटेंस है ये। सो इस ऐसे सेंटेंस में वर्ब के पहले बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में हम डू या डज लगाएंगे। डू यू एग्री विथ मी, अब एग्री जो आपका वर्ब है, डू आपका बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में आ गया टू फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्लीज पे अटेंशन बिकॉज वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट्स बेस्ड ऑन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट वॉच या डज नॉट वॉच आएगा, एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू एंड डज बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में आएगा। ओके, प्लीज keep this in mind, it is very important. Now in other tenses we place not, other tenses, okay, we place not just after the helping verb to form negative sentences. She is not uploading her pictures on social media, ये एक नेगेटिव सेंटेंस हुआ, इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता, शी इज अपलोडिंग हर पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया। तो हम नॉट कहां पे लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज के बाद में लगाते हैं। शी इज नॉट मतलब, इज नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म होगा ही होगा। सो शी इज नॉट अपलोडिंग हर पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा आपका, आई हैव नॉट येट सीन द गोल्डन टेम्पल। आई हैव नॉट येट मतलब नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट येट सीन द गोल्डन टेम्पल। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे, नॉट बीन मतलब बारिश नहीं हुई है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। नाउ we place the helping verb in the beginning of a sentence to form interrogative sentences. ये जो आर हैव ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। ओके, नाउ हेल्पिंग वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो आपने वर्ब्स चैप्टर में पढ़ा है। Now, are they going to the stadium? Question mark means it is an interrogative sentence. Have they bought the tickets? Question mark, interrogative sentence. Have you been sleeping since morning? Question mark, it is an interrogative sentence. So, we have finished the four forms of your present tense based on the formulas, how to break it down, how to identify the sentence. Now, we will do your worksheet tryout 1. Underline the verbs and identify the tense. Number 1 जो है आपका, Pranjay has submitted his file. अब Pranjay, what do we have to do in this? We have to underline the verbs and identify the tense. अब ये जो sentence आपका आता है, Pranjay has submitted his file. इसमें subject कौन है स्टूडेंट्स? Pranjay है। जिस जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिस पे एक्शन हो रहा है वो क्या है, वो आपका है ऑब्जेक्ट। So Pranjay has submitted his file. अब देखिए यहाँ पे the word Pranjay is your subject. File is the object.
अब प्रांजल हैज सबमिटेड। अब जहां पर भी हैज आता है, what have we studied according to the formula? The tense is present perfect tense. Just try to identify जहां पर भी हैज या हैव लगा एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा, वो आपका all the formulas should be fresh in your mind. Or when you are practicing these answers, write down 4 of the formulas in a separate sheet of paper and then tally it with the sentence which is given to you. आप लिखेंगे प्रांजय has submitted his file, उसके नीचे लिखेंगे या साइड में एक पेपर में 4 फॉर्मूलेज लिख लीजिए जो 4 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद देखिए कौन से फॉर्मूला में हैज या हैव है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ जुड़ रहा है वो टू कंप्लीट द मीनिंग। तो हैज या हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबमिट V1 फॉर्म, V3 इज सबमिटेड। सो फॉर्मूला जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। दिस इज हाउ यू विल डू दिस सेंटेंस टू आइडेंटिफाई द वर्ब। सो अंडरलाइन हैज सबमिटेड एज योर वर्ब, राइट द टेंस एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि इंडिकेट करता है एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रांजल हैज सबमिटेड हिज फाइल। सो यहाँ पे बच्चों आपका फॉर्मूला जो यूज हुआ है सब्जेक्ट प्रांजल प्लस हैज या हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब सबमिट प्लस ऑब्जेक्ट जो है आपका फाइल। सो परफेक्टली ये मैच करता है आपका फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राइट डाउन सब्जेक्ट क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, V3 फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द सेंटेंस, देन यू विल नॉट हैव टू लर्न दीज थिंग्स बाय हार्ट और गेट कंफ्यूज्ड। इट इज वेरी सिंपल। 4 फॉर्मूला लिखिए, अप्रोच कीजिए सेंटेंस को, दैट्स इट। नाउ सेकंड वी विल डू आई एम गोइंग टू द कॉन्सर्ट नाउ। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स आई एम गोइंग, गोइंग में क्या लगा, आईएनजी, मतलब कंटिन्यूअस होगा। आइदर ये आपका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में तो आपको टाइम चाहिए, ठीक है, तो ये आपका टाइम वाला नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला नहीं है, ये सिर्फ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वाई? अब पहले आप 4 फॉर्मूलाज देख लीजिए, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो तो हर सेंटेंस में है। बीच में क्या होना चाहिए, कहां पर एम इज आर लग रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूला में लग रहा है। सो उसमें गो के साथ लगता है आपका आईएनजी। गो जो है आपका V1 फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगा है, गोइंग बन गया, उसके पहले आपका एम है, फिर उसके बाद लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट है। सो यू कैन आइडेंटिफाई दिस टू बी योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। नाउ आई हैव रिटन डाउन एवरीथिंग वेरी सिस्टमैटिकली। अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो रेफर कीजिए इसको, बट पहले ट्राई इट ऑन योर ओन, डोंट जस्ट सी द आंसर्स फर्स्ट, ठीक है। राइट डाउन 4 formulas, अप्रोच इट, tally your answer with the explanation given here, don't just mug up things. Now third, children have been playing since 5 o'clock. Children have been playing since 5 o'clock. How do you approach this? आप देखिए यहाँ पे एक टाइम है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि एक तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट मिल गया टाइम से एंड आईएनजी से कंटिन्यूअस मिल गया, ठीक है, और उससे पहले आपका हैव बीन है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सो ये टेंस हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चिल्ड्रन सब्जेक्ट, हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। सिंस या फॉर भी आता है हमारा फॉर्मूला में, वो कौन से फॉर्मूला में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला फॉर्मूला, ठीक है। सो अंडरलाइन हैव बीन प्लेइंग फॉर योर वर्क। Everything is given very much in detail over here, okay? After you approach the sentence, tell your answer. Now number 4, a rolling stone gathers no moss. ये क्या है, proverb है, a rolling stone gathers no moss. So ये जो proverbs है हम use करते हैं किसके लिए, like we studied first for simple present tense. Rolling stone subject, gathers verb, मॉस आपका ऑब्जेक्ट, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, हैज, हैव, इज, एम, बीन, आईएनजी कुछ नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। आराम से आप डाल दीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट्स इट। नाउ नंबर 5, दैट कंपनी हैज बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर 2 years। अब हैज बीन बिल्डिंग फॉर 2 years, आपका ये बहुत इजी है हाउ टू आइडेंटिफाई। सी आईएनजी आ गया मतलब आपका हो जाएगा कंटिन्यूस, यू नो कंटिन्यूस वर्ड आएगा ही आएगा। फॉर या सिंस आएगा मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि एक टाइम भी दिया हुआ है फॉर 2 years,
ठीक है, फॉर या सिंस आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, आईएनजी होता है तो उसमें कंटिन्यूस जुड़ जाता है, दैट्स इट। हैज या हैव आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट है। सो दैट कंपनी, कंपनी आपका सब्जेक्ट है, ब्रिज आपका ऑब्जेक्ट है। हैज बीन बिल्डिंग जो फॉर्मूला है वो यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ओके, नाउ नंबर 6, डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? नाउ व्हाट इज द, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? We studied that interrogative sentences take the word do at the beginning of the sentence. We use do in the beginning of a sentence to form interrogative sentences. We have studied this. So this is simple present tense. Do you believe in destiny? Okay. Now try out two. Fill in the blanks using the सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, दैट्स इट। नाउ फर्स्ट, आई डैश टू जॉइन द आर्मी। आपका वर्ब दिया हुआ है वांट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। आई जो है आपका सब्जेक्ट है, आर्मी जो है आपका ऑब्जेक्ट है। आई सिंपल प्रेजेंट फॉर्म बोला है तो आई ऑलवेज wanted to join the army. Okay. Now, he dashed the chapters daily. अब नॉट रिवाइज है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमने क्या बोला था? ही डज नॉट रिवाइज द चैप्टर्स डेली। नंबर 3, डैश दे डैश क्लासिकल सॉन्ग्स। यहाँ पे तो आपका आ जाएगा दे है तो वो आपका आएगा यहाँ पे आर, आर दे सिंगिंग क्लासिकल सॉन्ग्स, सिंगिंग, ठीक है, आर दे सिंगिंग क्लासिकल सॉन्ग्स। नंबर 4, डैश शी डैश यर। अब जहां पर शी आता है यहाँ पे आएगा इज, इज अ इंटरोगेटिव वर्ड, इंटरोगेटिव या क्वेश्चनिंग वर्ड। इज शी वर्क का हो जाएगा वर्किंग हियर, इज शी वर्किंग हियर, प्रेजेंट फॉर्म में आपको करना है। सो इज शी वर्किंग हियर। नेक्स्ट नंबर 5, वी डैश रूडली नॉट बिहेव। वी डू नॉट बिहेव रूडली, ठीक है, डू नॉट, जहां पे नॉट है उसके सामने डू नॉट आएगा। Number 6, here dash the bus. Here comes the bus. Okay. Now we will do your worksheet number 3. Fill in the blanks with the appropriate present continuous forms of the verb given in the brackets. Brackets में जो आपके verbs दिए गए हैं, you have to fill in the blanks with the appropriate present continuous forms. Continuous forms means what, students? You have to add the word ing. It is as simple as that. So number 1, I dash learn French nowadays. क्या होगा इसका आंसर? I हो गया तो am होगा, इज एम या आर लगता है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में, सो आई है तो एम होगा, आई एम लर्न हो जाएगा लर्निंग, आई एम लर्निंग फ्रेंच नाउडेज। ओके, आई एम लर्निंग फ्रेंच नाउडेज। नाउ नंबर 2, व्हाई डैश दे डैश डिस्कस द मैटर सो लाउडली। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म मतलब वर्ब जो है डिस्कस बन जाता है डिस्कसिंग। व्हाई आर दे डिस्कसिंग द मैटर सो लाउडली। Number 3, I dash revise my chapter. I am revising my chapter. Revise बन जाता है revising. Number 4, and I am क्यों होगा? Because I है, ठीक है, I subject pronoun में am जुड़ता है। They और जो plural subject है why are लगेगा, ठीक है, I am, they are, ठीक है। Number 4, Chetan dash work hard for the CPMT examination. प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में आईएनजी लगता है, सो चेतन वर्किंग है, वर्किंग से पहले इज एम या आर क्या लगेगा? चेतन इज वर्किंग, क्योंकि इज क्यों लगेगा? क्योंकि चेतन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो सिंगुलर सब्जेक्ट में इज लगता है। नाउ नंबर 5, ही इज अ जॉली पर्सन बट टुडे ही डैश नॉट टॉक टू एनीवन। नॉट टॉक बन जाएगा आपका नॉट टॉकिंग, टुडे ही इज नॉट टॉकिंग, ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इज, he is not talking to anyone. Number 6, what dash you dash do here? जो verb है आपका do है, so what are you doing here?
डू जो है आईएनजी लग के डूइंग बन जाता है। व्हाट आर यू डूइंग हियर? Number 7. Girls dash join the army these days. Girls are. Why? Because girls plural है उसमें R लगेगा. Join बन जाएगा joining क्योंकि present continuous form बताया है. So join बन गया joining and girls are joining the army these days. क्योंकि ये फॉर्मूला के अनुसार हमें subject plus is am या are plus the ing form of the verb plus the object. जहाँ पे ये यहाँ पे in this case it is are. Anuradha is very calm by nature but nowadays she dash lose temper on petty issues. Lose बन जाता है losing. She is losing. She singular subject is. So she is losing L-O-S-I-N-G losing temper on petty issues. Why losing? Because continuous form. Why is? Because according to the formula of present continuous form, subject के बाद आपका is, am या are लगेगा depending on the subject. Number 9. What dash they dash read in the competition? Read is your verb. According to present continuous form, read बन जाएगा reading. So what are they reading in the competition? Now number 10. Shamsher dash write a letter of complaint to the company. Write हो जाएगा writing. Shamsher is writing a letter of complaint to the company. Why is? क्योंकि शमशेर जो है आपका singular subject है. So I've given the answers here. You can refer to it. Now we will do tryout 4. Tryout 4 में students the question is change the following sentences to the present perfect tense. जो sentences है आप उनको present perfect tense में लिखिए. Now the girls are playing hockey. Present perfect tense का formula क्या है? Present perfect tense में हमेशा आपका आता है has या have. पहले आप present perfect tense अगर दिया हुआ है write down the formula first. Subject plus has या have plus V3 form of the verb plus object. This is your formula. अब आप approach कीजिए सारे sentences को. The girls are playing hockey. Subject girls, object hockey. ठीक है? Are playing जो है आपका present continuous है उसको हमको present perfect करना है. ठीक है? Is am are कहाँ पे लगता है? Present कंटिन्यूस में लगता है बट हमको इसको प्रेजेंट परफेक्ट करना है. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हैज या हैव. सो द गर्ल्स हैव प्लेड हॉकी. ठीक है. प्लेड क्यों लगा? क्योंकि हमें V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगा. प्ले जो हो गया उसका V3 फॉर्म हो गया प्लेड. उसके आगे द गर्ल्स have played. Why not has? Has is used for singular, have is used for plural. यहाँ पे subject आपका girls है जो कि plural है इसीलिए आपका have लगा has नहीं. Played क्यों लगा उसके बाद? क्योंकि हमको V3 form of the verb play के साथ लिखना है and उसके बाद object को जोड़ना है. ठीक है. Next, children learn poems for recitation. अब हमको इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है. चिल्ड्रन इज योर सब्जेक्ट. उसके बाद हैज या हैव लगेगा. सो चिल्ड्रन प्लूरल है तो हैव लगेगा. ठीक है. उसके बाद लर्न का जो बेस फॉर्म है जो आपके क्वेश्चन में चिल्ड्रन लर्न जो वर्ब है उसका हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे हैव लर्नड. थर्ड फॉर्म ऑफ लर्न इज लर्नड. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम कर रहे हैं ना. V3 फॉर्म में लर्न हो जाता है लर्न. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे पोएम्स फॉर रेसिटेशन. ठीक है. नाउ नंबर 3 शी ब्रेक्स ग्लासेस. अभी शी जो है आपकी सब्जेक्ट है ब्रेक्स आपका वर्ब है एंड ग्लासेस आपका जो है वो है आपका ऑब्जेक्ट. सो शी सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमारा लगेगा हैज. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम फॉर्मूला देख के ही लिख रहे हैं. शी हैज या हैज लगेगा. क्यों हैज लगेगा? क्योंकि शी इज सिंगुलर सब्जेक्ट. ब्रोकन ब्रेक्स का हो गया ब्रोकन. जहां पर भी थर्ड फॉर्म आता है हम वहां पे ENED या थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट फॉर्म में लिखेंगे. शी हैज ब्रोकन द ग्लासेस. ग्लासेस आपका ऑब्जेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. दिस इज करेक्ट. नाउ नंबर 4 वी मेक कस्टर्ड. वी सब्जेक्ट मेक वर्ब custard object. So according to the formula we have made custard. We plural subject followed by have. Make का हो गया made. ठीक है. V3 form of make is made. Now number 5 I buy books. I जो है आपका singular subject है तो उसके साथ आपका
लगेगा आई हैव, बट ये एक एक्सेप्शन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन आई के साथ हैव लगता है, ठीक है। नॉर्मली वी से नो दैट विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स ओनली वी पुट हैव, बट आई इज द ओनली एक्सेप्शन टू दिस रूल, which is the subject pronoun I will be followed by have. सो आई हैव बाई का हो जाएगा बॉट, थर्ड फॉर्म में बुक्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नाउ नंबर 6, ही इज लर्निंग जर्मन लैंग्वेज। अब लर्निंग जो है आपका वर्ब है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फॉलोड बाय हैज, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्निंग का लर्न जो है वो हो गया लर्न जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। सो दिस वी हैव फिनिश्ड योर ट्राई आउट 4 also. Now try out 5. Fill in the blanks with the present perfect continuous form of the given verbs. Now this is very easy students. Present perfect continuous tense में हमें क्या होना चाहिए? Main important चीज जो रहना चाहिए इसमें is that we should have your ing in the verb. Rain बन जाएगा raining, watch बन जाएगा watching, go बन जाएगा आपका goes या going, प्ले बन जाएगा प्लेइंग, डांस डांसिंग, स्टे स्टेइंग। ये परफेक्ट, ये कंटिन्यूअस फॉर्म का हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट मतलब यहाँ पे होना चाहिए हैज या हैव। हैज या हैव किस पे डिपेंड करेगा? आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो लेट अस डू द फर्स्ट वन। इट डैश फॉर 2 hours। इट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला पहले लिख दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन आएगा प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर्म प्लस द टाइम। क्यों? क्योंकि हमेशा हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है वो हमारा सिंस कितने टाइम या फॉर हाउ मच टाइम को दिखाता है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट ओनली वी विल डू दिस। सो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। ओके, पीपल dash the match since 6 o'clock. Have been. Why have been watching? Because people is plural. So have लगेगा, been लगेगा, watch बन जाएगा watching. We are not doing anything great. We are just applying it to this formula over here. Has या have, पहले subject लिख लीजिए, देख लीजिए subject आपका plural या singular है, then depending on that put has या have, then been रहेगा ही रहेगा, plus V1 form plus ing। क्यों? क्योंकि continuous form में हमेशा ing लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा प्लस सिंस या फॉर आएगा, ठीक है। सो थर्ड वाला करेंगे, वी डैश नॉट डैश देयर फॉर मेनी इयर्स। वो बन जाएगा गोइंग। वी हैव, व्हाई वी हैव, वी प्लूरल, वी हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर मेनी इयर्स। दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। वी हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर मेनी इयर्स। अब नंबर 4, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है। ही हैज, क्यों? क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज नॉट बीन प्लेइंग। बीन प्लेइंग हमारा फॉर्मूला में आता है, बीन प्लेइंग, प्ले का हो गया प्लेइंग एंड नॉट बीन। अब फिफ्थ वाला, डैश शीना डैश सिंस 9 PM। हैज शीना बीन डांसिंग सिंस 9 PM। अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, therefore it will begin with the helping verb has। Has शीना been dancing since 9 PM, ठीक है। Next is number 6. Why dash you dash here for a few days? Why have you been staying here for a few days? Question mark. So with this, we come to the end of your perfect, simple perfect tense. Present tense जो है उसके 4 forms हमने पढ़े. We have done lot of examples. What you need to do, students, is write down the 4 formulas on a sheet of paper and then approach these exercises. It will be very easy. You don't have to mug up. आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वो what is S, what is have been, what is V1, what is V3, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 4 फॉर्मूला लिखिए, जैसे ही you will be doing, keep practicing many sentences, then only you will not have to remember also and get confused कि अरे ये क्या करूं, present perfect है, present continuous है। You will get to know on your own. When you practice, you will become perfect. So with that, we come to the end of this present tense. Past tense and future tense, I will make 2 separate videos, otherwise it will be very confusing for you. If you like my channel, students, please like, share and subscribe and keep the notification button on so that when I put a next video, you are notified about it. Please subscribe to my channel, students. Thank you.